Man is inhabited with an aesthetic and creative mind. This creative instinct is expressed through various crafts, and textile is one of them. Textiles are a non-verbal medium that tells us the cultural and geographical history of the people, and even their customs and traditions. Every region developed its own set of textiles according to its climatic conditions and also according to color and design preferences. The journey of textile begins with a single thread, which takes many forms and goes through many stages before reaching to its proud possessors. India has a very old and rich tradition of textiles. Perhaps it is the only region which has a greater variety of fiber, fabric, and techniques. The film will take you to some of the craftsmen who have kept the age-old tradition of weaving, dyeing, block printing, and embroidering skills still alive. Let us start our journey from Kutch, a jewel in Gujarat's crown, and a remarkable repertoire of Indian textiles. The prominent textile crafts of Kutch are Bandhani craft, Ajrak block printing, embroideries, and weaving. The Kutchi Bandhani, traditionally practiced by the Khatri community, is well known for its extremely fine dots and sophisticated sense of composition. Bandhani is the technique of creating design on textiles by resisting parts of a fabric by tying knots on it before it is dyed. The ancient craft is believed to have travelled from Sindh to Gujarat via Rajasthan. The execution of the Bandhani piece begins with the demarcation of the border and then progresses to patterning of the center field and the smaller filler motifs that surround it. The complex chemistry of color-fast dyeing was a proverbial Indian monopoly until the 17th century. As was said, "Phate pan phite nahi," tear it may, but fade it won't. The tone of madder dye clothes developed with the help of mordant is quite delicate. Generally, the ground is kept white. Clothes are bleached several times. The dyeing is generally done by men. Dyeing is undertaken by women. The process of dyeing and dyeing is repeated again and again till the various parts of the design get the appropriate colors. हमारा काम बांधनी का है। हमारे पिताजी भी करते थे। हमारे पिताजी के जो फादर थे वो सब पारंपरिक कई पीढ़ियों से यही करते आए हैं। बांधनी में सब अलग-अलग आइटम बनाते हैं, जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, और जितना बांधनी में काम ज़्यादा होगा और बारीक काम होगा उतना उसका रेट ज़्यादा होगा। The tie and dye technique attains a different connotation in Gujarat itself for another world-renowned and extremely rare and intricate craft, that of Patola saris. Patola, the textile woven of selected dyed warp and weft threads, are characterized by their distinctive geometric, floral, and figurative double ikat patterns. The textile with geometric patterns and tiger and elephant motifs constitutes a significant luxury goods. The silk warp and weft threads of Patola are tied separately with cotton thread and then dipped in color so that only the open thread may absorb the dye, which is a very complicated and painstaking task. The basis of the fine handiwork in the final form of the Patola sari is the art of dyeing the silken thread. The areas that have been colored are then dyed and the threads are immersed in the second color.
so that once again only the untied areas may be colored. The process is repeated depending upon the number of colors desired. And after the color appears on both sides of the warp and the weft, the cotton threads are loosened. The fact that the patterns and the designs are predetermined means that the slightest mistake in the repeated tying and dyeing can render the entire toil worthless. This unique skill is the essence of the patola craft. ये जो क्राफ्ट है उसमें जो टोटल प्रोसेस है तो कम से कम 25 प्रोसेस है. उसमें मेन जो प्रोसेस है 8 प्रोसेस है. ये रॉ मटेरियल हम इंपोर्टर से लेते हैं, चाइना सिल्क जो है. इसके बाद सिल्क को खोलने का काम, उसको डिगमिंग करने का काम, इकट्ठा तार करने का, हैंड स्पिन करने का, ताना बनाना, वाना बनाना, उसको टाई करना, डाइंग करना और उसको विविंग, एडजस्टमेंट, ये सब पूरा 8 प्रोसेस है. इसके एक एक प्रोसेस के कम से कम इसमें 3 प्रोसेस है. तो पूरा ये जो साड़ी जो बनाने का काम है पटोला, तो 25 प्रोसेस में जाए कंप्लीट होएगा तभी एक ही साड़ी बनेगी. तो उसमें ऐसा है कि 2 क्राफ्टमैन काम करेगा एक ही साड़ी के लिए, तो कम से कम उसको 10 से 11 महीना या 12 महीना तक चला जाता है. तो ये जो प्रोसेस से एक साड़ी तैयार करने में कम से कम 1 साल लग जाता है. The making of patola saris has always remained a cottage industry and a family affair. Salwis are perhaps the only family unit who still practice their ancestral tradition. A similar technique to the Gujarati tie and dye for coloring thread is also found in Jaipur, the capital city of Rajasthan. It is locally known as Laheria. Laherias traditionally were and are used as headgear all over Rajasthan. Each headgear had a different identity, depicting its social, cultural, as well as economic manifestation in terms of the social status of the individual wearing it. लहरी के अंदर क्या लाइंस होती हैं, वेव्स. और दूसरा क्या होता है कि जब नदी में जब पानी बह के चला जाता है, जो सूखी रेत होती है या राजस्थान में रेतीली एरिया तो लेयर जमी होती है रेत की, तो उसके अंदर वेव्स नजर आती है. लोगों को क्या चाहिए था कि कुछ कलरफुल कपड़ा हो, तो कलरफुल करने के लिए क्या उसको बांध के लहरिया किया. Usually, Laheria textiles are produced by men. They work in their houses or in small workshops. Only very thin and loose cloth is preferred, as dyes need to penetrate the rolled piece properly. Generally, fast or very gaudy colors are not used for Laheria articles. The colors are prepared manually, and the technique is called mothra. Fabric is rolled from the corners diagonally and is then tied in accordance with the design it is required to be made in. The Bandhani and Patan Patola of Gujarat and Laheria of Rajasthan are distinct examples of the technique of tie and dye India is known for. But not far away from here, about 30 kilometers away from Jaipur, lies a village called Bagru, known for its block-printed fabric worldwide. Traditionally, this work has always been done by the Chippa community. The block printing technique, which is named Bagru after the town itself, involves 16 to 18 steps. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से बगरू में रहते हैं और हम लोगों का जो पारंपरिक जो पुश्तैनी काम है वो ब्लॉक प्रिंटिंग का है. ब्लॉक प्रिंटिंग का काम लगभग 400 से 500 साल पुराना है. हम ब्लॉक प्रिंटिंग के और हमारे पुश्तैनी काम के अलावा दूसरा काम कर नहीं सकते हैं. इसको खुशी भी कह सकते हैं और हमारी रोजी रोटी भी कह सकते हैं. The process of block printing craft has a series of steps to deal with. For 2 days, raw cotton fabric is kept in a moderate solution, a mixture of cow dung, soda ash and sesame oil. It is then washed in flowing water and kept out in exposed spaces to bleach in the sun.
The cloth is now colored in powdered Harad solution. For red printing, a concentrated thick paste of red soil, natural gum, alum and pure ghee is used to print the block. Blocks are specially made as per the requirements of the pattern desired. For black, a paste of jaggery and gum mixed with horseshoe pieces is desired. The printed cloth is then washed in sufficient water, ensuring washing away of the gum totally. The process is called degumming. To get the requisite red shade, the degummed cloth is dyed in a hot boiling mix of madder called majitha or manjishtha, mixed with a particular variety of flour locally called dabariya and some other organic material. When the red dyed cloth is dipped in alum solution, the ground shade of the cloth changes to yellow. It is then re-dyed again in hot madder to get dark pink shades. Pink dyed cloth is then subjected to a mixture of bidhan, sour flowers of wheat, natural gum, lime, sand and black soil, and the process is called dabu. The dabu printed cloth is then dyed in pomegranate extract, which changes the ground shade of the cloth from pink to pinkish yellow. Pomegranate cloth is now dyed in natural indigo. The ground dye of the cloth attains dark blue tones. It is once again re-dyed in pomegranate extract, resulting in the blue color changing to olive green. This is once again dipped in alum solution and dried in the open sun and then kept in the shade for at least 24 hours. To get the requisite shine, it is washed again thoroughly. The cloth is again subjected to dabu printing. The re-dabu printed fabric is re-dyed in a mix of turmeric and pomegranate extract with woolen rugs to get yellow color in the leaves or as per pattern requirements. It is once again dipped in alum, which acts as a fixing agent for organic and vegetable dyes. Different moderates give different colors. The mud is now removed and the fabric is ready for its buyers, a craft expertise Bagru is known for. It is claimed that neither the artisan nor the consumer is affected by the colors, as the cloth is completely eco-friendly. Right from the preparation of raw material to the stage where the cloth is ready to undergo complete metamorphosis, each step warrants careful monitoring and personal involvement, which over time becomes a lifetime experience for the artisan. No wonder the Chippas have never thrown away any of their blocks, and the proud collection has now become a matter of great prestige and ancestral heritage. Some blocks are even more than 200 years old and of course priceless. As Bagru of Rajasthan, Azrakpur in Kutch area of Gujarat is also famous for its exquisite block printing craft. It is just a difference of pattern, motifs and style, and perhaps the topography, which has given block printing a different dimension in Gujarat. Let's return to Azrakpur in the region of Kutch. Using resist and mordanting techniques as natural dyes, coupled with the rhythmic placement of blocks, Ajrak block printing is a rare work of art enmeshed in beauty and skill. To achieve the high art on fabric, the Ajrak dyer uses the deepest blue of indigo and the molten red of madder, as if eulogizing the divinity of the twin opposing forces of nature. The pattern configuration of an Ajrak print is a mirror interpretation of the trigonometric architectural symmetry in medieval art.
Kutch is an arid and semi-arid region. Water availability is a major problem, which is required in plenty for crafts like Ajrak. The family of Dr. Ismail Muhammad Khatri, who has been conferred a doctorate by De Montfort University in UK, had traditionally been living in Dhamadka, but as the water level in the area dipped hundreds of feet underground, they decided to shift to Ajrakpur, about 40 kilometers away, a decade ago. But even here, the priceless resource is becoming an issue of concern, and he is naturally apprehensive. फ्यूचर हमको दिख नहीं रहा। जब हम काम करते थे 15 साल के थे, तब हमारे पुराने गांव के अंदर पानी 10 फीट के ऊपर था और आज वो 150 फीट के ऊपर है और अगले 20 साल के अंदर वो 500 फीट जाएगा या 1000 जाएगा, बराबर। तो ये जो खिंचावा करके 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 तो फिर फ्यूचर आगे का पानी के बगैर तो काम ये होगा नहीं। The most endearing quality of the product is that it has the inherent quality to keep the wearer warm in winter and cool in summer. Now that we are back in Gujarat, let's visit a nearby village of weavers, whose residents have set several standards in the field of fabric weaving. Situated just 8 kilometers from Bhuj, this village of Bhujodi is unparalleled in its art and craft of weaving. India has always held considerable sway over the world of cotton textiles from ancient times. Every home had a spinning wheel, and most homes also had a loom, producing hand-spun, hand-woven cloth. Weaving is also defined as a craft of touching as well as seeing. For weavers, yarn is both a source of inspiration and of imitation. The way a yarn feels guides one on how to use it and to explore new directions of use. A weaver must know his yarn before he begins to weave. 1000 साल पुराना है ये काम, और तब जो टेक्निक थी और अब अभी हम जो यूज कर रहे हैं सेम टेक्निक, कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, नई पावर, पूरा हाथ का काम, हैंड वीविंग है पूरा। हम चेंज किया है जरूर, तो ओनली हमारा जान और साइज उसको हमने चेंज किया है। For generations, communities have been engaged in making different kinds of craft products. The people of Kutch interpret this patternized style using their own traditional skills and materials. It is said that the knowledge and practice of arts and crafts activates the body, mind and soul. In 2001, the Kutch region of Gujarat was struck by a devastating earthquake. In a moment, everything turned to dust. Houses collapsed. Thousands of people died and families lost everything, at least in worldly terms. Earthquake happened at a point of time where the craftspeople were also actually relooking at how would they survive. So this suddenly brought in a lot of attention in a short span of time. We did bring in a lot of resources, a lot of focus again back to the different kind of activities that were happening. But the Kutchi people have a very kind of intrinsic pride, and that is how we have named the new initiative called Khamir. Khamir means the Khudari or the intrinsic pride. So the people didn't just want to take benefit of the aids that were coming in, but they wanted to come up with their own skills, with their own resilient power, because historically Kutch has been going through all this kind of natural calamities where people have come back to their feet. So though in a way the earthquake did bring a lot of attention to the craft, the people came back by themselves. But it was probably the combined effect of the intrinsic strength, capability, determination and ingenuity of the Kutchi community, especially their women, that even in that hour of a huge crisis, they found solace in a tradition that no natural calamity has been able to deprive them of,
not even the apocalyptic earthquake of 2001. History recounts the patronage received by the Mochis, the community of shoemakers, to undertake artwork of royal textiles and decorative objects of the courts of Kutch and Kathiawar. The fine regular chain stitch, mirror work, the use of motifs of varied derivatives, and of color schemes that are typically graded from red to pink, indigo to blue, and dark green to parrot green, distinguish these silk-on-silk embroideries. These rural renditions have become a style in their own right, characterized by varying degrees of stylization on conventional motifs, the addition of contemporary motifs, and the expansion of the stitch and color repertoire. मेरे को 2003 में नेशनल अवार्ड मिला था। पहले मेरे नानी माँ काम करते थे, उससे भी ऊपर उसका मम्मी, उसका नानी माँ सब ऐसे ही काम करते हैं। कब से करते हैं वो मेरे को पता नहीं है। यहाँ ऑर्डर बहुत मिलता है, काम ज़्यादा मिलता है तो हमको भी अच्छा रहता है इसमें। The variation in the permutation of material motifs and techniques employed differ from community to community, thus creating a number of distinct and coherent visual identities, unique to each clan or community, irrespective of the embroiderer's provenance. Be it Rabari, Ahir, Meghwal, Sodha Rajput, Jat or Mutua. The context remains much the same, and stitched embellishments serve as a testament to the skill of the maker. In addition to performing such utilitarian functions, the work reflects an evocative account of the aspects of the maker's daily existence and the cultural and economic interactions of his or her community with the other Kutchi communities. We have seen the techniques of Bandhani, Ajrak block printing, Kutch embroidery or Patan Patola saris from Gujarat, or Laheria and Bagru block printing from Rajasthan. All these crafts have given India a distinct identity in the world of textiles globally. In the mosaic of Indian tapestry, these crafts and their creators have silently kept the fire burning and have managed to help these crafts survive the adversities of changing times. The time has come to perhaps redefine and reiterate the commitments society at large should have towards such works of excellence, towards such artisans who have been torch-bearers of our textile cultural heritage, keeping the spirit alive and vibrant. काह के ताना काह के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया अष्ट कमल चरखा डोले पांच तत्व गुण तीन चदरिया साई को सियत मास दश लागे ठोक ठाक के बीनी चदरिया सो चादर सुर नर मुनि ओढ़न ओढ़ के मैली कीनी चदरिया दास कबीर यतन से ओढ़न ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया मानव मस्तिष्क मूलतः
सौंदर्य प्रेमी और सृजनात्मक है। उसकी यही प्रवृत्ति अनेक शिल्प कलाओं में प्रदर्शित होती है, जिनमें से एक है वस्त्र निर्माण कला। वस्त्र कला एक मूक दर्पण है जो हमें लोगों के सांस्कृतिक और भौगोलिक इतिहास के अलावा उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों की भी झलक देता है। आश्चर्य नहीं कि देश के हर हिस्से में लोगों ने अपने पसंदीदा रंगों और रूपरेखा के मुताबिक ही वस्त्र बनाए हैं। वस्त्र कला का प्रारंभिक सूत्र मात्र वो अकेला धागा है जिसे अपना अंतिम विकसित रूप अख्तियार करने के लिए अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। भारतीय वस्त्रकला परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध है। वस्त्र, उसके रेशे तथा वस्त्रकला की तकनीकी विविधता जितनी भारत में है, शायद और कहीं नहीं। इस फिल्म के माध्यम से हम कुछ ऐसे चुनिंदा कारीगरों से मिलेंगे जिन्होंने भारतीय वस्त्रकला की सदियों पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है, चाहे वो बुनकर परंपरा हो, रंगरेजी हो, ब्लॉक प्रिंटिंग हो या कशीदाकारी अथवा एम्ब्रॉयडरी का महीन काम। आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कच्छ से, जो भारत की पश्चिमी सीमा रेखा पर स्थित खूबसूरत प्रांत गुजरात के मुकुट पर चमकता बेशकीमती हीरा है और स्वयं में असाधारण वस्त्र कला कौशल का अद्भुत रंगपटल भी। बांधनी, अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग, कपड़े की परंपरागत बुनाई और एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी में महारत कच्छी कारीगरों की विशेष पहचान है। इस दिशा में कच्छी बांधनी बरसों से यहां बसे खत्री समुदाय का पारंपरिक कारोबार है, जो अपने छोटे छोटे बिंदुओं से बनी आकृतियों और रंगों के बेहतरीन मिश्रण तथा अपनी रूपरेखा की खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। बांधनी एक ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत कपड़े के जिस हिस्से में जो भी रंग चढ़ाना हो उसे छोड़कर बकाया कपड़े को गांठ बांधकर अवरोधित कर दिया जाता है, ताकि रंग कपड़े के उसी हिस्से पर चढ़े जहां वांछित हो। कहते हैं कि मूलतः सिंध प्रांत से प्रचलित यह शिल्प कला राजस्थान के रास्ते गुजरात तक पहुंची। बांधनी बनाने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कपड़े के किनारों को सीमांकित किया जाता है और फिर चुनिंदा रूपरेखा या डिजाइन के मूल भाव को मद्देनजर रखते हुए कपड़े के मध्य भाग पर काम किया जाता है। कपड़ों पर पक्के रंग चढ़ाने की रसायन प्रक्रिया भारत में 17वीं सदी से प्रचलित है। स्थानीय भाषा में सुविख्यात कहावत है, फाटेपन फिटे नहीं, कपड़ा फट जाएगा पर रंग नहीं उतरेगा। मॉर्डेंट यानी रंग बंधक का उपयोग करते हुए मन चाहे ढंग से कपड़ा रंगने की यह अति निपुण शिल्प कला गुजरात और कच्छ की विशेष पहचान है, जिसमें कपड़े की आधार मूल परत को सफेद ही रखा जाता है और कपड़े को बार बार विरंजित यानी ब्लीच किया जाता है। डाइंग यानी रंगरेजी का काम अक्सर पुरुष करते हैं। टाइंग यानी गांठ बांधने का काम महिलाएं करती हैं। गांठ बांधने, खोलने और डिजाइन या पैटर्न के मुताबिक फिर से गांठ बांधने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कपड़ा उचित रंग न पकड़ ले, जैसा चाहिए वैसा। हमारा काम बांधनी का है। हमारे पिताजी भी करते थे। हमारे पिताजी के जो फादर थे वो सब पारंपरिक कई पीढ़ियों से यही करते आए। बांधनी में सब अलग अलग आइटम बनाते हैं, जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, और जितना बांधनी में काम ज्यादा होगा और बारीक काम होगा उतना उसका रेट ज्यादा होगा। तकनीकी भाषा में टाई एंड डाई यानी गांठ बांधने के बाद रंगने की यही परंपरागत पुरानी तकनीक गुजरात के ही पाटन शहर में एक अलग शैली के रूप में उभर कर आई, जो अपनी रूपरेखा में नितांत दुर्लभ और अत्यंत पेचीदा ढंग से बुनी पटोला साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रंगदार ताना और बाना प्रक्रिया के अंतर्गत बुनी गई पटोला साड़ियों की विशेषता है ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्रिक आधार पर पुष्प विषयक या फ्लोरल और प्रतीकात्मक शिल्प की संरचना। इनमें गजराज यानी हाथी
और चीतों के प्रतीकों से संयोजित साड़ियां अपनी परिष्कृत साज सज्जा और भव्यता के लिए दुनिया भर में सराही जाती हैं। बांधनी शैली के अंतर्गत जहां कपड़े को ही गांठ बांधकर उसे मनचाहा रंग रूप दिया जाता है, उसकी तुलना में पटोला शिल्प के अंतर्गत धागे पर एक पहले से ही तयशुदा और अत्यंत क्लिष्ट पैटर्न के मुताबिक सूती धागों से गांठ बांधी जाती है, जो बेहद पेचीदा और महीन काम है। पटोला साड़ी के अंतिम स्वरूप में निखर कर आने वाली शिल्पकला का आधार है रेशम धागे को रंगने की कला। पटोला शिल्प की साड़ी या स्टोल जितने रंग वांछित हों उतनी ही बार धागे को रंगा जाता है और हर नया रंग चढ़ाने से पहले पिछले रंगे सभी हिस्सों को गांठ बांधकर अवरोधित करना पड़ता है ताकि उस हिस्से पर कोई भी दूसरा रंग न चढ़े। क्योंकि पैटर्न और डिजाइन पहले से ही तैयार है, इसलिए बार बार गांठ बांधने और फिर बार बार रंगने की प्रक्रिया में जरा सी भी चूक सारी मेहनत बेकार कर सकती है। पटोला शिल्प कला की यही अद्भुत प्रक्रिया इस शिल्प की आत्मा है। ये जो क्राफ्ट है उसमें जो टोटल प्रोसेस है तो कम से कम 25 प्रोसेस है। उसमें मेन जो प्रोसेस है 8 प्रोसेस है। रॉ मटेरियल हम इंपोर्टर से लेते हैं, चाइना से जो है। इसके बाद सिल्क को खोलने का काम, उसको डिगमिंग करने का, इकट्ठा तार करने का, हैंड स्पिन करने का, ताना बनाना, वाना बनाना, उसको टाई करना, डाइंग करना और उसको विविंग, एडजस्टमेंट, ये सब पूरा एक प्रोसेस है। इसके एक एक प्रोसेस के कम से कम इसमें 3 प्रोसेस है। तो पूरा ये जो साड़ी जो बनाने का काम है पटोला, तो 25 प्रोसेस में जाए कंप्लीट होएगा तभी एक ही साड़ी बनेगी। तो उसमें ऐसा है कि 2 क्राफ्टमैन काम करेगा एक ही साड़ी के लिए, तो कम से कम उसको 10 से 11 महीना या 12 महीना तक चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस से एक साड़ी तैयार करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। पटोला क्राफ्ट या शिल्प कला शुरू से ही कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है और आज जो गिने चुने लोग अब भी इस परंपरागत शिल्प कला को जिंदा रखे हैं, वहां सालवी परिवार के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। रंगरेजी के लिए टाई एंड डाई तकनीक के अंतर्गत गुजराती बांधनी से मिलती जुलती शैली का एक अलग नमूना राजस्थान के जयपुर शहर में भी देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में लहरिया कहते हैं। राजस्थान में परंपरागत रूप से लहरिये का इस्तेमाल सिर ढकने या पगड़ी बांधने के लिए किया जाता रहा है। हर लहरिया पगड़ी पहनने वाले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का एक मूल प्रतीक भी मानी जाती रही है। लहरिये के अंदर क्या लाइन्स होती हैं, वेव्स, और दूसरा क्या होता है कि जब नदी में जो पानी बह के चला जाता है, जो सूखी रेत होती है या राजस्थान में रेतीली एरिया तो लेयर जमी होती है रेत की, तो उसके अंदर वेव्स नजर आती है। लोगों को चाहिए था कि कुछ कलरफुल कपड़ा हो, तो कलरफुल करने के लिए क्या उसको बांध के लहरिया किया। लहरिया कपड़े का काम अक्सर पुरुष करते हैं। रंगरेज यह काम या तो अपने घर से करते हैं या किसी छोटी सी वर्कशॉप से। वर्तमान दौर में महीन कपड़ों के तुलनात्मक रूप से छोटे टुकड़ों को ही प्राथमिकता दी जाती है ताकि उसके हर रेशे में रंग पूरी तरह समा सके। लहरिया में बहुत ज्यादा शोख रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कारीगर द्वारा खुद ब खुद रंग बनाए जाने वाली इस प्रक्रिया को मोथरा कहते हैं। कपड़े को तिरछे कोनों से पकड़कर लपेटा जाता है और फिर जैसा डिजाइन चाहिए उसी हिसाब से उस पर गांठें बांधी जाती हैं। गुजराती बांधनी और पटोला तथा राजस्थानी लहरिया की झलक देखने के बाद आइए हम राजस्थान में ही जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बगरू कस्बे तक चलते हैं, जो कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। परंपरागत रूप से यह काम बगरू में बसे छप्पा समुदाय का पैतृक कारोबार है। बगरू कस्बे के नाम से ही मशहूर यहां प्रचलित ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया में 16 से 18 सोपान है, तभी कपड़ा अपनी बगरू पहचान पाता है। मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से बगरू में रहते हैं और हम लोगों का जो पारंपरिक जो पुश्तैनी काम है
वो ब्लॉक प्रिंटिंग का है। ब्लॉक प्रिंटिंग का काम लगभग 400 से 500 साल पुराना है। हम ब्लॉक प्रिंटिंग के और हमारे पुश्तैनी काम के अलावा दूसरा काम कर नहीं सकते। इसको खुशी भी कह सकते हैं और हमारी रोजी रोटी भी कह सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग की इस तकनीक का सिलसिला कुछ इस तरह से है। खालिद सूते कपड़े को 2 दिन तक गाय के गोबर, सोडा ऐश और तिल के तेल के संतुलित मिश्रण में रखे जाने के बाद अच्छी तरह धोकर खुली धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए कपड़े को हरड़ पाउडर के घोल में रंगा जाता है। अब कपड़े के पूरी तरह सूखने के बाद लाल रंग में छपाई के लिए गेरू मिट्टी, प्राकृतिक गोंद, असली घी और अलम यानी फिटकरी के सम्मिश्रण से बने रंग और जो भी डिजाइन अपेक्षित हो उसके लिए विशेष रूप से बनाए गए लकड़ी के ब्लॉक्स द्वारा कपड़े पर पहली छाप अंकित की जाती है। यदि यहाँ काले रंग में छपाई करनी हो तो घोड़े की नाल, गुड़ और गोंद का इस्तेमाल भी करते हैं। छपाई सूखने के बाद कपड़े को एक बार फिर साफ पानी में धोया जाता है ताकि उसमें से गोंद पूरी तरह निकल जाए। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में डीगमिंग कहते हैं। गोंद से विमुक्त इस कपड़े को अपेक्षित रंग देने के लिए उपयुक्त मैडर यानी मंजिष्ठा या मजीठा, एक खास तरह के फूल जिन्हें स्थानीय भाषा में दाबड़िया के नाम से जाना जाता है, और कुछ अन्य वनस्पति पदार्थों की मिश्रित सामग्री युक्त उबलते पानी में खंगाला जाता है। अब जब इस लाल रंग चुके कपड़े को फिटकरी के पानी में डाला जाता है तो कपड़े में खास पीला रंग उभर कर सामने आता है। इसे एक बार फिर मैडर युक्त पानी में रंगा जाता है जिससे कपड़े में एक गहरे गुलाबी रंग की परत उभर कर आती है। इस गहरे गुलाबी रंग पा चुके कपड़े को अब बीधन यानी खेतों में ही खराब हो चुके गेहूं, प्राकृतिक गोंद, चूना, रेती और काली मिट्टी से बने रंग से डिजाइन के मुताबिक प्रिंट किया जाता है। इस प्रक्रिया को दाबू कहते हैं। दाबू प्रक्रिया द्वारा छापे जा चुके कपड़े को अब अनार के सत्त वाले पानी में रंगा जाता है जिससे कपड़े के आधारभूत गुलाबी रंग में कुछ पीला रंग भी निखर कर आ जाता है। अब इस कपड़े को इंडिगो रंग में डुबोया जाता है जिससे कपड़े पर गहरे नीले रंग की परत चढ़ती है। एक बार फिर इस कपड़े को अनार सत्त का रंग चढ़ाया जाता है जिसकी वजह से नीला रंग जैतूनी हरे में तब्दील हो जाता है। इसे एक बार फिर फिटकरी के पानी में खंगालने के बाद खुली धूप में सुखाकर कम से कम 24 घंटों के लिए छाया में रखा जाता है। अब कपड़े में अपेक्षित चमक लाने के लिए इसे एक बार फिर अच्छी तरह साफ पानी में धोया जाना आवश्यक है। सूखने के बाद इस कपड़े को एक बार फिर दाबू प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दोबारा से दाबू किए गए कपड़े को हल्दी, अनार के सत्त, तिल का तेल और कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़ों से बने घोल में हाथों द्वारा रंगा जाता है ताकि जहां अपेक्षित हो वहां का पीला रंग फिर से उभर सके। अब इस कपड़े को एक बार फिर फिटकरी के पानी में खंगाला जाता है जो अब तक उपयोग में लाए जा चुके ऑर्गेनिक या वेजिटेबल रंगों को स्थायित्व प्रदान करता है, फिक्सिंग एजेंट का काम करता है। अलग अलग मॉडरेंट्स अलग अलग रंगों की शेड्स देते हैं। कपड़ों पर चिपकी मिट्टी या अनावश्यक सामग्री को हटा दें तो कपड़ा उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए बगरू विश्वविख्यात है। मान्यता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और बाद में भी इन सभी रंगों का कोई भी हानिकारक असर न तो कभी किसी कारीगर पर हुआ और न ही किसी उपभोक्ता पर, बल्कि अपने अंतिम स्वरूप में बगरू कपड़ा पूर्ण रूपेण इको फ्रेंडली बनकर निखरता है। रंग बनाने के पहले सोपान से लेकर अंतिम चरण तक, जहां तक पहुंचते पहुंचते कपड़े का पूरी तरह कायाकल्प हो जाता है, हर कदम पर व्यक्तिगत एहतियात बरतनी आवश्यक है, जो शिल्पकार के लिए न सिर्फ एक अनूठा अनुभव है बल्कि एक भावनात्मक उपलब्धि भी। शायद यही कारण है कि छिप्पा परिवार ने आज तक उपयोग में लाए गए किसी भी ब्लॉक को, चाहे वो रिवाज में रहे या ना रहे, निरस्त नहीं किया है। और ऐसा हर ब्लॉक उनके लिए बड़े मान और पैतृक धरोहर का प्रतीक है, जिनमें से कुछ ब्लॉक्स तो 200 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं और निस्संदेह अनमोल भी।
राजस्थानी बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की लगभग इसी तकनीक का एक दूसरा स्वरूप सुदूर गुजरात के अजरकपुर कस्बे में भी देखने को मिलता है। आइए चलें अजरकपुर वापस गुजरात के कच्छ इलाके में। अंतर है तो मात्र पैटर्न्स का या भौगोलिक तथा कुछ सांस्कृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न विभिन्नता का। प्राकृतिक ढंगों की नैसर्गिक क्षमता, बेजान लकड़ी पर गढ़ी कुछ मुंह बोलती आकृतियां और कारीगरों की परिकल्पना के अनेक सुरों में ढला एक पावन प्रयास और रूखे और कोरे कपड़े पर अपनी छाप छोड़ती भिन्न भिन्न छवियां। अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग किसी भी शिल्प की असाधारण अंतर्निहित खूबसूरती का एक रोमांचक प्रदर्शन है। कपड़े पर उभर कर आने वाली इस कला के सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए अजरक रंगरेज इंडिगो के गहन नीले और पिघलाए मैटर की लालिमा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं, मानो ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक संरचनाओं की मौलिक प्रतिरोधी ताकतों का गुणगान हो रहा हो। अजरक कला की छाप में मध्यमकालीन भारत की तत्कालीन स्थापत्य परंपरा की झलक भी दिखती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कच्छ और इसके आसपास का इलाका खुश्क क्षेत्र है। पानी की उपलब्धता इस पूरे क्षेत्र के लिए एक भारी समस्या है, जबकि अजरक कला के लिए पानी बहुतायत में चाहिए। डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद खत्री, जिन्हें 2003 में इंग्लैंड की डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी ने उनके हुनर और योगदान को सम्मानित करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, वे मूलतः अजरकपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित धमड़का वासी हैं। लेकिन क्योंकि वहां पानी का जल स्तर धरती में बहुत नीचे चला गया था, इसलिए करीब 10 बरस पहले उन्होंने अजरकपुर को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। लेकिन इस गांव में भी प्रकृति प्रदत्त इस बेशकीमती तोहफे की कमी अब यहां भी गहन चिंता का विषय बन चुकी है। फ्यूचर हमको दिख नहीं रहा। जब हम काम करते थे 15 साल के थे, तब हमारे पुराने गांव के अंदर पानी 10 फीट के ऊपर था और आज वो 150 फीट के ऊपर है और अगले 20 साल के अंदर वो 500 फीट जाएगा या 1000 जाएगा, बराबर। तो ये जो खिंचावा करके 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 तो फिर फ्यूचर आगे का पानी के बगैर तो काम ये होगा नहीं। अजरक कपड़े की सबसे बड़ी खूबी है पहनने वाले को गर्मियों में ठंडक पहुंचाना और सर्द मौसम में गर्माहट। वापस गुजरात आए हैं तो आइए थोड़ी दूर और बुनकरों के एक ऐसे गांव में भी चलते हैं जहां रहने वालों ने कपड़ा बुनाई के क्षेत्र में अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कच्छ के भुज शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर यह गांव भुजोड़ी बुनकर कौशल कला में अप्रतिम है। भारत वस्त्र शिल्प कला क्षेत्र में सदियों से अग्रणी रहा है। एक ऐसा समय भी था जब शायद हर घर में चरखा होता था और बहुत से घरों में हथकरघा यानी लूम, जिन पर अपने हाथों से बुने तागे से कपड़ा बुना जाता था। कपड़ा बुनने की कला किसी भी बुनकर की छू सकने और देख सकने की नैसर्गिक क्षमता का ही एक परिमार्जित स्वरूप है। बुनकर के लिए सूत का हर तागा प्रेरणा का स्रोत भी है और अनुकरणीय भी। कहते हैं कि सूत स्वयं अपने भावी स्वरूप की दिशा निर्धारित कर देता है। शायद इसीलिए किसी भी बुनकर के लिए सूत की फितरत पहचानना बहुत आवश्यक है। 1000 साल पुराना है ये काम, और तब जो टेक्निक थी और अब अभी हम जो यूज कर रहे हैं सेम टेक्निक, कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, नहीं पावर, पूरा हाथ का काम, हैंड वीविंग है पूरा। हम चेंज किया है जरूर, तो ओनली हमारा जान और साइज उसको हमने चेंज किया है। कच्छी लोगों ने अपने तरीके से इस हुनर का हमेशा बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ बसे समुदाय वर्षों से अनेक प्रकार की परंपरागत चीजें बनाते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी शिल्प का मौलिक ज्ञान और निरंतर अभ्यास शिल्पकार के शरीर, मस्तिष्क और चेतना को भी प्रेरित करता है। सन 2001 में जब कच्छ का यह पूरा इलाका एक जबरदस्त भूकंप का शिकार हुआ था, तो पलक झपकते ही मीलों तक सब कुछ जैसे मिट्टी में मिल गया। हजारों इस हादसे का शिकार हुए और लगा जैसे यहां रहने वालों ने अपना सब कुछ खो दिया हो।
earthquake happened at a point of time where the craftspeople were also actually relooking at how would they survive. So this suddenly brought in a lot of attention in a short span of time. We did bring in a lot of resources, a lot of focus again back to the different kind of activities that were happening. But the Kutchi people have a very kind of intrinsic pride, and that is how we have named the new initiative called Khamir. Khamir means the Khudari or the intrinsic pride. So the people didn't just want to take benefit of the aids that were coming in, but they wanted to come up with their own skills, with their own resilient power, because historically Kutch has been going through all this kind of natural calamities where people have come back to their feet. So though in a way the earthquake did bring a lot of attention to the craft, the people came back by themselves. लेकिन संभवतः ये कच्ची समुदाय की आंतरिक शक्ति, क्षमता, दृढ़ विश्वास और अद्भुत विदग्धता का मिला जुला प्रभाव था, खासतौर पर इस पूरे क्षेत्र की महिलाओं का, कि इस घोर विपदा की घड़ी में भी उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक ऐसी परंपरा की शरण ली जिसे कोई भी प्राकृतिक विपदा उनसे कभी छीन नहीं पाई, न ही 2001 का वह प्रलयंकारी भूकंप। यह कला, यह शैली थी कच्ची महिलाओं की पुरानी पहचान, एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी। आइए एक नजर इस हुनर पर भी डालें। राजसी घरानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली आलंकारिक सामग्री और रोजमर्रा के उपयोग हेतु जूते आदि बनाने वाले मोची समुदाय को कच्छ और काठियावाड़ के राजघरानों से हमेशा विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसी परंपरा के अंतर्गत एक बहुत महीन और क्रमबद्ध नमूनेदार कढ़ाई, जीवन के मूल भाव की उतनी ही विविध उत्पत्ति, रंगों का चयन, गहन लाल से गुलाबी, गहरे हरे रंग से तूतिया हरा, गहन इंडिगो से नीले तक का क्रियात्मक उपयोग और रेशम पर रेशम धागे से उभारी गई मनोहारी आकृतियां, कच्ची एम्ब्रॉयडरी कशीदाकारी का हर काम अपनी कहानी खुद कहता है। एक क्षेत्र विशेष की माटी के महक लिए कच्ची कशीदाकारी की विशिष्टता ही उसकी पहचान है, जहां परंपरागत मूल भावों के अनेकानेक स्वरूप जो कहीं पुरातन रीति रिवाजों का द्योतक है, तो कभी आधुनिक और सामयिक परिवर्तनों का नवीन स्वरूप। यह समूची कला रंगों और कला कौशल के स्थानीय रंगपटल पर उभरने वाली एक से बढ़कर एक आकर्षक छवियों की निरंतर बहती धारा है। मेरे को 2003 में नेशनल अवार्ड मिला था। पहले मेरे नानी माँ काम करते थे, उससे भी ऊपर उसका मम्मी, उसका नानी माँ सब ऐसे ही काम करते हैं। कब से करते वो मेरे को पता नहीं। और यहाँ ऑर्डर बहुत मिलता है, काम ज्यादा मिलता है, तो उनको भी अच्छा रहता है। इस पूरे कच्छ क्षेत्र में जितने भी समुदाय इस शिल्प कला से जुड़े हैं, कशीदाकारी के इस अद्भुत महासागर में उतनी ही तरह की विभिन्न धाराएं भी देखने को मिलती हैं, जिसकी एक झलक आपको किसी भी समुदाय विशेष को पहचानने के लिए काफी है, जो शैली विशेष के उद्गम स्थल की पहचान भी देता है। चाहे वो राबारी हो, अहीर हो, मेघवाल हो, सोढ़ा राजपूत हो या जट मुटवा हो, सब कुछ कारीगर महिलाओं की क्षमताओं का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण है। कशीदाकारी का यह मनोहारी काम न सिर्फ इनकी व्यवहारिकता को दिखाता है, बल्कि यह एक सूत्र भी है उनके दैनंदिन व्यवहार में एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मेलजोल का। यह सभी शिल्प कलाएं, चाहे गुजरात की बांधनी, पटोला, कशीदाकारी या अजरक हों, अथवा राजस्थान के लहरिया और बगरू कला, इन सभी ने अपने अपने स्तर पर भारतीय वस्त्र कला कौशल को दुनिया वालों की नजर में एक अलग पहचान दी है। भारतीय शिल्प कला के मंच पर इन सभी शिल्पकारों ने बदलती परिस्थितियों के बावजूद इन परंपराओं को जिंदा रखा है। शायद वक्त आ गया है कि हम सब भी इन विधाओं को नए नजरिए से देखें। इन विधाओं और शिल्पकारों के प्रति हमारी जो भावना और संवेदना होनी चाहिए, उस पर मनन करें कि कैसे इन चुनिंदा लोगों ने भारत की वस्त्र निर्माण की परंपरागत शिल्प कला की पताका को फहराए भी रखा है और गुंजायमान भी। काह के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी,
तार से भीनी चदरिया। अष्ट कमल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। साई को सियत मास दश लागे, ठोक ठाक के भीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर यतन से ओढ़िन, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। माणसाला उपजतच सौंदर्याची आणि सर्जनाची ओढ असते। विविध कला आणि कौशल्यांमध्ये त्याच्या या ओढीचाच प्रत्यय येत असतो। या विविध कलांमधील एक म्हणजे वस्त्र निर्मितीची कला। वस्त्रकला वेगवेगळ्या जनसमूहांच्या सांस्कृतिक भौगोलिक इतिहासाबरोबरच त्यांच्या प्रथा परंपरा आणि रीतिरिवाजांची चुणूक दाखवणारा आरसा। देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या वेगवेगळ्या जनसमूहांनी आपापल्या आवडीच्या रंगांच्या, रूपाच्या, पोताच्या वस्त्रांची निर्मिती केली तर त्यात नवलते काय? वस्त्रकलेचं पहिलं वहिलं सूत्र म्हणजे केवळ एक धागा। विकसित वस्त्ररूप धारण करण्यासाठी त्याला अगणित प्रक्रियातून जावं लागतं। भारतीय वस्त्रकला अतिशय प्राचीन आणि समृद्ध आहे। कदाचित भारत हा एकमेव देश जिथे इतक्या विविध प्रकारची विविध तंत्रांनी बनवलेली वस्त्र मिळतात। या भारतीय वस्त्रकलेची परंपरा पिढ्यानपिढ्या जे जोपासत आले आहेत, अशा काही निवडक कारागिरांशी या माहितीपटातून आपण संवाद साधणार आहोत। मग ते विणकर असोत, कापड रंगवणारे रंगरेज असोत, छपाई काम करणारे असोत की नाजूक कशिदा काम करणारे असोत। चला तर मग ही सफर सुरू करूया कच्छ पासून। कच्छ भारताच्या पश्चिम सीमेवरच्या लोभस गुजरातच्या शिरपेचा चमचमणारा मौल्यवान हिरा आणि असामान्य अशा वस्त्र कला कौशल्याच्या राजस आविष्काराचा रंगमंच सुद्धा। इथले कारागीर ओळखले जातात ते त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणी, अजरख ब्लॉक प्रिंटिंग, पारंपरिक विणकर कौशल्य आणि एम्ब्रॉयडरी म्हणजे कशिदाकारीसाठी। कच्छी बांधणी हा इथल्या खत्री समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय। लहान लहान ठिपक्यातून साकारलेल्या आकृती आणि मोहवणाऱ्या रंगसंगतीचा सुरेख आविष्कार म्हणजे ही बांधणी। कापडाच्या जेवढ्या भागाला ज्या रंगात रंगवायचं असेल तेवढा भाग सोडून बाकीचा भाग गाठी बांधून ठेवला जातो। कापडाचा हवा तेवढाच भाग हव्या त्या रंगात रंगावा म्हणून। मूळची सिंध प्रांतातली ही कला राजस्थान मार्गे गुजरातमध्ये आली असं म्हणतात। बांधणी प्रक्रियेत सर्वप्रथम कापडाच्या काठाचा भाग वेगळा आखून घेतात आणि मग जे डिझाईन तयार करायचं असतं त्याला कापडाच्या मध्यापासून सुरुवात करतात। पक्क्या रंगात कापड रंगवायची रसायन प्रक्रिया भारतात 17व्या शतकापासून अस्तित्वात होती। इथल्या भाषेत एक म्हण आहे, फाटे पण फिटे नाही, फाटेल पण विटणार नाही। मॉर्डंट
म्हणजे रंग पक्का करणाऱ्या माध्यमाचा वापर करत कापड रंगवण्याची ही कला गुजरात आणि कच्छचं वैशिष्ट्य मानली जाते, ज्यात कापडाचा मूळ रंग पांढराच ठेवला जातो आणि कापड पुन्हा पुन्हा रंगविरहित म्हणजे ब्लीच केलं जातं. डाईंग म्हणजे कापड रंगवण्याचं काम बहुधा पुरुषच करतात, तर स्त्रिया टाईंग म्हणजे गाठी बांधण्याचं काम करतात. कापडावर हवे ते रंग हव्या त्या डिझाईन नुसार चढेपर्यंत गाठी बांधणं, सोडणं, डिझाईन नुसार पुन्हा बांधणं आणि रंगवणं ही प्रक्रिया चालूच राहते. ये हमारा काम बांधने का है. हमारे पिताजी भी करते थे. हमारे पिताजी के जो फादर थे वो सब पारंपरिक कई पीढ़ियों से यही करते आए. बांधने में सब अलग अलग आइटम बनाते हैं, जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, और जितना बांधने में काम ज्यादा होगा और बारीक काम होगा उतना उसका रेट ज्यादा होगा. टाय अँड डाय म्हणजेच गाठी बांधून रंगवण्याची ही पुरातन कला गुजरातच्याच पाटण या शहरात एका वेगळ्या शैलीसहित अवतरली. अतिशय गुंतागुंतीची कलाकुसर असणाऱ्या इथल्या या दुर्मिळ पटोला वस्त्रकलेची ख्याती जगभर पसरलेली आहे. रंगीबेरंगी ताण्या बाण्यांनी विणलेला पटोला. पटोलाचं वैशिष्ट्य म्हणजे भूमितीय म्हणजेच जॉमेट्रिक आकृतीतून साकारलेली फुला पानांची किंवा प्रतिकात्मक डिझाईन्स. हत्ती आणि चित्त्याच्या प्रतिकात्मक चित्रांनी भारदस्तपणे सजलेल्या पटोला साड्या जगभर प्रसिद्ध आहेत. बांधणीमध्ये कापडालाच गाठी बांधून मनपसंत रंगात रंगवलं जातं, तर पटोला रेशमी उभ्या आडव्या धाग्यांना म्हणजे ताण्या बाण्यांना आधीच ठरवलेल्या अतिशय कलाकुसरीच्या पॅटर्न नुसार सुटी धाग्यांच्या गाठी दिल्या जातात आणि हव्या त्या रंगात ते रंगवले जातात. हे काम फार नजाकतीचं आणि गुंतागुंतीचं असतं. विणून तयार झालेल्या पटोला साडीच्या रूपाचं रहस्य दडलेलं असतं ते रेशमी धागे रंगवण्याच्या कलेत. कारण पॅटर्न आणि डिझाईन आधीच तयार असतं, त्यामुळे त्यानुसार पुन्हा पुन्हा गाठी मारून पुन्हा पुन्हा रंगवण्याच्या प्रक्रियेत जरा कुठे चूक झाली तर सारी मेहनत पाण्यात. पटोला साडी किंवा शेल्यामध्ये जेवढे रंग हवे असतील तितक्या वेळा धागे रंगवावे लागतात आणि प्रत्येक वेळी नवा रंग देताना धाग्यांच्या आधी रंगवलेल्या भागांना गाठी मारून ठेवल्या जातात, म्हणजे मग तेवढ्या भागावर दुसरा कुठचा रंग लागत नाही. ही विलक्षण प्रक्रिया म्हणजे पटोला वस्त्रशैलीचा आत्माच होय. ये जो क्राफ्ट है उसमें जो टोटल प्रोसेस है तो कम से कम 25 प्रोसेस है. उसमें मेन जो प्रोसेस है 8 प्रोसेस है. रॉ मटेरियल हम इंपोर्टर से लेते हैं, चाइना सिल्क जो है. इसके बाद सिल्क को खोलने का काम, उसको डिगमिंग करने का, इकट्ठा तार करने का, हैंड स्पिन करने का, ताना बनाना, वाना बनाना, उसको टाई करना, डाइंग करना और उसको विविंग, एडजस्टमेंट, ये सब पूरा एक प्रोसेस है. इसके एक एक प्रोसेस के कम से कम इसमें 3 प्रोसेस है. तो पूरा ये जो साड़ी जो बनाने का काम है पटोला, तो 25 प्रोसेस में जाए कंप्लीट होएगा तभी एक ही साड़ी बनेगी. तो उसमें ऐसा है कि 2 क्राफ्ट्समैन काम करेगा एक ही साड़ी के लिए, तो कम से कम उसको 10 से 11 महीना या 12 महीना तक चला जाता है. तो ये जो प्रोसेस से एक साड़ी तैयार करने में कम से कम 1 साल लग जाता है. पटोला कारागिरी हा सुरुवातीपासून कॉटेज इंडस्ट्रीचा हस्तकला व्यवसायाचा भाग होता आणि आजही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या ज्या लोकांनी ही परंपरा जपली आहे त्यात सालवी कुटुंब सोडलं तर इतरत्र कुठे कुणी दिसत नाही. टाय अँड डाय तंत्राचा विचार करायचा तर गुजरातच्या बांधणी शैलीशी मिळती जुळती अशी दुसरी एक शैली राजस्थानच्या जयपूर शहरातही पाहायला मिळते. तिला इथल्या भाषेत लहरिया असं म्हणतात. राजस्थानात
लहरियाचा पारंपरिक उपयोग होतो तो प्रामुख्यानं पगडीसाठी. कोणी कोणती लहरिया पगडी घातली आहे त्यावरून त्या पगडीवाल्याचं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थान काय आहे ते ओळखता येतं. लहरी के अंदर क्या लाइन्स होती हैं, वेव्स. और दूसरा क्या होता है कि जब नदी में जो पानी बह के चला जाता है जो सूखी रेत होती है या राजस्थान में रेतीली एरिया तो लेयर जमी होती है रेत की, तो उसके अंदर वेव्स नजर आती है. लोगों को चाहिए था कि कुछ कलरफुल कपडा हो, तो कलरफुल करने के लिए क्या उसको बांध के लहरिया किया. लहरिया कापडाचं कामही बहुधा पुरुषच करतात. कपडा रंगवणारे रंगरेज आपल्या घरी किंवा एखाद्या छोट्याशा वर्कशॉपमध्ये हे काम करतात. तलम कापडच प्राधान्यानं लहरियासाठी निवडलं जातं, कारण त्यामुळे प्रत्येक धाग्यातून रंग हवा तसा उतरवणं सोपं होतं. लहरियामध्ये फार गडद रंगांचा वापर केला जात नाही. रंग हाताने बनवले जातात आणि हे तंत्र मोथरा म्हणून ओळखलं जातं. गुजराती बांधणी आणि पटोला तसंच राजस्थानी लहरियाच्या रंगात न्हाऊन निघाल्यावर चला आता जाऊया राजस्थानातच जयपूर पासून 30 किलोमीटरवरच्या बगरू गावी. बगरू कापडावरच्या छपाई कामासाठी जगप्रसिद्ध आहे. ही परंपरा म्हणजे बगरू मधल्या छिप्पा समाजाचं पिढ्यानपिढ्यांचं संचित. बगरू गावच्या नावानंच ओळखल्या जाणाऱ्या या छपाई कामाचे 16 ते 18 टप्पे असतात. ते पार केल्याशिवाय कापडाला बगरू हे बिरुद लाभणं अशक्य. मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से बगरू में रहते हैं और हम लोगों का जो पारंपरिक जो पुश्तैनी काम है वो ब्लॉक प्रिंटिंग का है. ब्लॉक प्रिंटिंग का काम लगभग 400 से 500 साल पुराना है. हम ब्लॉक प्रिंटिंग के और हमारे पुश्तैनी काम के अलावा दूसरा काम कर नहीं सकते. इसको खुशी भी कह सकते हैं और हमारी रोजी रोटी भी कह सकते हैं. गाईचं शेण, सोडा ॲश आणि तिळाच्या तेलाचं समप्रमाणात मिश्रण करून त्यात सुती कापड 2 दिवस भिजवून ठेवतात. त्यानंतर ते स्वच्छ धुवून उन्हात वाळवलं जातं. कापड सुकलं की ते हरडा मिसळलेल्या पाण्यात घोळवून सुकवलं जातं. कापड पुन्हा पूर्णपणे सुकलं की हव्या त्या डिझाईनच्या लाकडी ठप्प्याच्या सहाय्यानं गेरू, डिंक, तुरटी आणि शुद्ध तुपाच्या मिश्रणातून बनवलेल्या रंगाचे ठसे कापडावर उमटवले जातात. काळा रंग हवा असेल तर त्या मिश्रणात गूळ, डिंक आणि घोड्याची नाळ टाकली जाते. ठसे सुकले की पुन्हा कापड स्वच्छ पाण्यानं चांगलं धुवून त्यातून डिंकाचा अंश पूर्णपणे काढून टाकला जातो. या प्रक्रियेला डिगमिंग असं म्हणतात. डिंक काढल्यानंतर कापडाला हवा तसा लाल रंग देण्यासाठी मंजिष्ठा, दाबडिया नावाची फुलं, औल झाडाच्या लाकडाची ढलपी आणि इतर काही वनस्पती पाण्यात उकळून घेऊन त्या पाण्यात कापड बुचकळून घोळवून काढण्यात येतं. यालाच मॅडर डाईंग असं म्हणतात. लाल रंगात रंगलेलं हे कापड तुरटीच्या पाण्यात घातलं की त्याला एक विशेष प्रकारचा पिवळा रंग चढतो. मग परत तो मंजिष्ठा मॅडरच्या रंगात बुडवला जातो. त्यामुळं त्यावर गडद गुलाबी रंगाचा थर चढतो. गडद गुलाबी रंगाच्या या कापडावर मग गव्हाचा कुजवलेला चोथा, डिंक, चुना, रेती आणि काळ्या मातीच्या बनलेल्या रंगाचे डिझाईन नुसार ठसे उमटवले जातात. ह्या प्रक्रियेला दाबू असं म्हणतात. दाबू प्रक्रियेनंतर कापड डाळिंबाचा अर्क मिसळलेल्या पाण्यात बुडवलं जातं. त्यामुळे मूळच्या गडद गुलाबी रंगात पिवळी आभा मिसळते. आता हे कापड निळीच्या रंगात बुडवलं जातं. त्यामुळे कापडावर गडद निळ्या रंगाचा थर चढतो. पुन्हा एकदा कापड
डाळिंबाचा अर्क मिसळलेल्या पाण्यात बुडवलं जातं. त्यामुळे त्याचा निळा रंग ऑलिव्ह सारखा हिरवा दिसू लागतो. पुन्हा एकदा तुरटीच्या पाण्यातून घोळवून काढलं की कापड उन्हात सुकवून मग किमान 24 तास तरी सावलीत ठेवतात. आता कापडाला चमक यावी म्हणून पुन्हा एकदा ते स्वच्छ पाण्यानं धुणं आवश्यक असतं. कापड सुकलं की पुन्हा दाबू प्रक्रिया करावी लागते. दाबू प्रक्रिया झाली की हवा तिथे पिवळा रंग उठून दिसावा म्हणून कापड हळद, डाळिंबाचा अर्क, तिळाचं तेल आणि लोकरीच्या कापडाचे तुकडे मिसळलेल्या पाण्यात बुडवलं जातं. त्यानंतर रंग हाताने लावला जातो, कारण त्यामुळे आवश्यक असेल तिथेच पिवळा रंग दिसतो. पुन्हा कापड तुरटीच्या पाण्यात घोळवून काढलं जातं. त्यामुळे आतापर्यंत वापरले गेलेले जैव आणि वनस्पती रंग पक्के होतात. तुरटीचं पाणी फिक्सिंग एजंटचं काम करतं. वेगवेगळ्या मॉडर्न्स म्हणजेच फिक्सिंग एजंट्समुळे वेगवेगळ्या रंगांच्या छटा कापडाला मिळतात. आता कापडावरची माती वगैरे झटकून टाकली की जगप्रसिद्ध बगरू कापड वापरासाठी तयार. असं म्हणतात की या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान या रंगांचा कोणताही अपायकारक परिणाम ना कधी कारागिरांवर झालाय ना कापड वापरणाऱ्यांवर. उलट बगरू कापड अगदी पूर्णपणे इको फ्रेंडली असतं. रंग बनवण्याचा पहिला टप्पा ते अखेरचा टप्पा या प्रवासात कापडाचा अगदी पूर्णपणे कायापालट होऊन जातो. कारागिराला पावला पावलावर काळजीपूर्वक लक्ष पुरवावं लागतं. प्रत्येक कापड हा त्याचा एक विलक्षण अनुभवच नाही, तर त्यात त्याचं भावनिक समाधान साठलेलं असतं. बहुधा म्हणूनच छिप्पा कुटुंबानं आजवर वापरलेले सगळे ठप्पे वडिलोपार्जित संपदेसारखे जपून ठेवलेत, मग ते वापरात असोत की नसोत. यातले काही ठप्पे तर 200 वर्षांचे जुने आहेत आणि अर्थातच अत्यंत मौल्यवान. राजस्थानातल्या ह्या बगरू छपाई कामाच्या तंत्रासारखाच आणखी एक प्रकार गुजरातच्या अजरकपूर इथे पाहायला मिळतो. तर मग चला अजरकपूरला पुन्हा एकदा गुजरात राज्याच्या कच्छ प्रांतात. दोहोत फरक आहे तो केवळ पॅटर्न्सचा आणि भौगोलिक तसंच काही प्रमाणात सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार उत्पन्न झालेल्या वैशिष्ट्यांचा. स्वाभाविक शैली, नैसर्गिक क्षमता, निर्जीव लाकडावर कोरलेल्या काही बोलक्या आकृती आणि कारागिरांची कल्पकता अशा अनेकानेक घटकांचा साधलेला सुरम्य मेळ आणि त्यातून कोऱ्या वृक्ष कापडावर रेखल्या जाणाऱ्या तरतरेच्या चित्रावली. अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग म्हणजे कलेच्या विलक्षण अशा आंतरिक सौंदर्याचाच रोमांचकारी प्रकट आविष्कार. कापडावरच्या या विलक्षण कलाविष्काराचा सर्वोत्तम परिणाम साधण्यासाठी अजरक रंगरेज निळीची गडद निळाई आणि लाल छटेसाठी मॅडर म्हणजे मंजिष्ठा विरघळवून केलेल्या रंगाचा प्राधान्यानं वापर करतात. जणू ईश्वरदत्त रंगवैभवाचं गौरवगान करतात. अजरक कलेवर मध्ययुगीन भारतातील स्थापत्य परंपरेचा प्रभावही दिसून येतो. कच्छ आणि त्याच्या आसपासचा भाग हा शुष्क आहे. पाण्याचा प्रश्न या संपूर्ण भागात मोठा बिकट आहे आणि अजरक कलेसाठी तर भरपूर पाणी लागतं. हे डॉक्टर इस्माईल मोहम्मद खत्री काही वर्षांपूर्वी इंग्लंड मधल्या डे मॉन्टफोर्ट विद्यापीठानं डॉक्टरेट प्रदान करून त्यांच्या कलाकौशल्याचा आणि योगदानाचा गौरव केला. डॉक्टर खत्री मूळचे अजरकपूर पासून सुमारे 40 किलोमीटरवरच्या धमडका गावचे राहणारे, पण तिथे भूजलाची पातळी इतकी खोल गेली होती की 10 वर्षांपूर्वी खत्री अजरकपूरला येऊन राहिले आणि इथलेच झाले.
पण आता इथे सुद्धा भूजलाचं धन आटत चाललंय आणि काळजीचं कारण होत चाललंय. फ्यूचर हमको दिख नहीं रहा. जब हम काम करते थे 15 साल के थे, तब हमारे पुराने गांव के अंदर पानी 10 फीट के ऊपर था और आज वो 150 फीट के ऊपर है और अगले 20 साल के अंदर वो 500 फीट जाएगा या 1000 जाएगा. बराबर. तो ये जो खिंचाव करते 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 तो फिर फ्यूचर आगे का पानी के बगैर तो काम ये होगा नहीं. अजरख कापडाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसात याचा स्पर्श शीतल वाटतो, तर थंडीच्या दिवसात उबदार. गुजरातमध्ये परतलो आहोतच, तर अजून थोड्या अंतरावर विणकरांच्या एका गावात जाऊन येऊया की. इथल्या रहिवाशांनी कापड विणण्याच्या क्षेत्रात अनेक नवे मानदंड प्रस्थापित केलेत. कच्छमधल्या भूज शहरापासून 8 किलोमीटर अंतरावरचं भुजवडी गाव अप्रतिम विणकर कलाकौशल्यासाठी प्रसिद्धच आहे. वस्त्रकलेच्या क्षेत्रात भारत फार प्राचीन काळापासून अग्रगण्य राहिलाय. एकेकाळी तर घराघरात चरखा असे आणि बऱ्याच घरातून हातमाग असत. लोक स्वतः कातलेल्या सुताचं कापड विणून वापरत असत. कापड विणण्याची कला म्हणजे विणकराच्या स्पर्श आणि दृष्टीच्या निसर्गदत्त संवेदनांचं संस्कारित रूप होय. विणकराच्या लेखी सुताचा प्रत्येक धागा म्हणजे एक प्रेरणा स्रोतच असतो, एक मार्गदर्शक असतो. असं म्हणतात की सूत हे स्वतःचं आपलं भावी रूप कसं असणार हे ठरवत असतं. म्हणूनच प्रत्येक विणकराला सुताचा स्वभाव ओळखता आला पाहिजे. 1000 साल पुराना है ये काम, और तब जो टेक्निक थी और अब अभी हम जो यूज कर रहे हैं सेम टेक्निक, कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें. नई पावर, पूरा हाथ का काम और हैंड वीविंग है पूरा. हम चेंज किया है जरूर, तो ओनली हमारा जान और साइज उसको हमने चेंज किया है. असं म्हटलं जातं की कुठल्याही शिल्पाचं मौलिक ज्ञान आणि निरंतर अभ्यास शिल्पकाराच्या शरीर, मेंदू आणि चेतनेला प्रेरित करतात. 2001 साली सगळा कच्छ भयंकर भूकंपात उद्ध्वस्त झाला होता. पाहता पाहता सारं जमीनदोस्त झालं होतं. हजारो लोक या आपत्तीला बळी पडले. इथल्या लोकांचं सर्वस्व जणू लुटलं गेलं, नाहीसं झालं. Earthquake happened at a point of time where the craftspeople were also actually relooking at how would they survive. So this suddenly brought in a lot of attention in a short span of time. We did bring in a lot of resources, a lot of focus again back to the different kind of activities that were happening. But the Kutchi people have a very kind of intrinsic pride, and that is how we have named the new initiative called Khamir. Khamir means the Khudari or the intrinsic pride. So the people didn't just want to take benefit of the aids that were coming in, but they wanted to come up with their own skills, with their own resilient power, because historically Kutch has been going through all this kind of natural calamities, where people have come back to their feet. So though in a way the earthquake did bring a lot of attention to the craft, the people came back by themselves. कच्छी समाजानं, विशेषतः महिला वर्गानं आपल्या आंतरिक शक्तीच्या, क्षमतेच्या, दृढ विश्वासाच्या आणि विलक्षण प्रगल्भतेच्या जोरावर त्या परंपरेचा आधार घेतला. ती होती पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा, कलेची परंपरा. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती तिला कधी लुटू शकली नाही. 2001 सालचा भूकंपही तिला उद्ध्वस्त करू शकला नाही. ही कला म्हणजे कच्छी महिलांची पारंपरिक ओळख, त्यांची कशीदाकारी. चला त्यांच्या ह्या कलेचीही ओळख करून घेऊया. राजघराण्यात अलंकरण म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि रोजच्या वापरातले चढाव वगैरे बनवणाऱ्या मोची समाजाला कच्छ आणि काठेवाडच्या राजघराण्यांचा आश्रय लाभला होता. त्याच परंपरेतली ही एक नाजूक देखण्या टाक्यांच्या भरतकामाची शैली, नक्षीकामातलं वैविध्य, रंगसंगती
लाल चुटुक ते गुलाबी, गडद हिरवा ते पोपटी, गडद निळा ते फिका निळा असा रंगांचा प्रभावी वापर आणि रेशमी कापडावर रेशमाच्या धाग्यांनी रेखाटलेल्या मोहक कलाकृती. प्रत्येक पैलू कच्छी कशिद्याची कहाणी सांगत असतो. आपल्या मातीचा गंध लेऊन येतो कच्छी कशिदा. कधी प्राचीन प्रथा परंपरांचं अभिमानास्पद प्रतीक बनून, तर कधी आधुनिक समकालीन परिवर्तनाला आपलंसं करत. रंग आणि कलाकौशल्याच्या स्थानिक रंगपटलावर निरंतर उलगडत चाललेल्या एकापेक्षा एक देखण्या सौंदर्यशाली प्रतिमांचा मोर पिसारा आहे हा. मेरे को 2003 में नेशनल अवार्ड मिला था. पहले मेरे नानी माँ काम करते थे, उससे भी ऊपर उसका मम्मी उसका नानी माँ सब ऐसे ही काम करते. कब से करते वो मेरे को पता नहीं. यहाँ ऑर्डर बहुत मिलता है, काम ज्यादा मिलता है तो उनको भी अच्छा रहता है. संपूर्ण कच्छ प्रांतात ह्या कलेत रमलेले जितके म्हणून समाज आहेत, तितके विविध प्रवाह कशिदाकारीच्या ह्या महासागरात पाहायला मिळतात. त्या त्या विशिष्ट शैलीवरून त्या त्या विशिष्ट समाजाची ओळख सहज पटते. शैलीच्या उगमस्थानाचा शोध लागतो. मग ते रबारी असोत, अहिर असोत, मेघवाल असोत, सोढा राजपूत असोत, जट किंवा जाट असोत की मुटवा, प्रत्येक शैली म्हणजे कारागीर महिलांच्या क्षमतेचा विलक्षण आविष्कार. कशिदाकारीच्या या मनमोहक कामातून स्त्रियांचं व्यावसायिक कौशल्यच फक्त व्यक्त होतं असं नाही, तर दैनंदिन व्यवहारात त्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक पातळीवरही कशा मिळून मिसळून राहतात याचं प्रतिबिंब देखील पाहायला मिळतं. गुजरातच्या बांधणी, पटोला, कशिदाकारी, अजरख कला असोत की राजस्थानच्या लहरिया आणि बगरू कला असोत, या सर्वांनीच आपापल्या पद्धतीनं भारतीय वस्त्र कला कौशल्याला जगात एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान मिळवून दिलंय. भारतीय हस्तकलांच्या क्षेत्रात या सर्व कलावंतांनी, कारागिरांनी बदलत्या परिस्थितीतही ह्या परंपरा जपल्या आहेत. आपणही आता ह्या कला प्रकारांकडे पाहण्याची नवी दृष्टी मिळवली पाहिजे. ह्या कला प्रकारांविषयी आणि कारागिरांविषयी आपली भावना काय असणार आहे? या कलावंतांनी ज्या जिद्दीनं भारताच्या वस्त्रनिर्मिती कलेच्या परंपरेची पताका फडकवत ठेवली आहे, तिचाही विचार करायला हवा आपण. काह के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया. अष्ट कमल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन चदरिया, साई को सियत मास दश लागे, ठोक ढाक के बीनी चदरिया. सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर यतन से ओढ़िन, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दी